अच्छा जी, so this is question number 10. Unit 1, question number 10. This is volume 1. अभी अगले 1.5 हफ्ते तक हम लोग वॉल्यूम 1 ही देखेंगे, तो everyone who has past paper should bring volume 1. Student takes reading to calculate his power. List all the readings he must take. Power क्या है? Energy upon time, work done upon time. Yes. So essentially, एक सेकेंड ना. So power is what? Power is energy upon time, or we can say work done upon time as well. दोनों में से कुछ भी चल जाएगा. तो अब मेरा सवाल ये है कि कौन सी टाइप की एनर्जी होगी. So when the question says that a student takes readings to calculate his power, where the student is running up a flight of stairs, so what sort of energy would he need? Height से कौन सी related होती है? It's gravitational potential energy. All right. So the energy over here that we are going to talk about is gravitational potential energy. ठीक है. अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाँ, नहीं नहीं, ग्रेविटी तो है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाइट. डिपेंड्स ऑन व्हाट? हाइट. तो अच्छा ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए मुझे क्या मेजर करना पड़ेगा? हाइट मेजर करनी पड़ेगी. सो आई नीड द हाइट. ठीक है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ग्रेविटेशनल एनर्जी का पोटेंशियल, हाँ, mgh. Yes. So gravitational potential energy is mgh. All right. So आपको h चाहिए, आपको और क्या चाहिएगा? You need mass. उमर क्या पूछ रहे थे बेटा? So you need height, you need mass and g तो 10 होता है ना, वो तो फिक्स्ड है. g is 10. टाइम. सही है. List all of the readings he must take. State one precaution he should take to make sure one of his readings is accurate. Walaikum assalam. Okay, beta, don't drag chairs. कितने हैं? How many are there? ठीक है, that's not a problem, but how many students are there? All right, so we say that the student takes readings to calculate power. Energy upon time is power. And कौन सी energy? So we want the gravitational potential energy. Gravitational potential energy का formula क्या है? That's mgh. So you need readings, mass, you need height, and you need time. All right. Gravity measure नहीं हो सकती. G is fixed at 10 meters per second squared. State one precaution he should take to make sure one of his readings is accurate. Yeah. One precaution. Huh? So the kid is running the flight. The kid is running upstairs. ठीक है. उसको अपनी energy find out करनी है. He wants to calculate his power. हाँ. So take an average of several readings. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा take an average of several readings. What you need to figure out an average of several readings of what?
नहीं, आपके पास तीन चीजें हैं, आपके पास हाइट है, आपके पास टाइम है और आपके पास मास है। किन चीजों का एवरेज लेना होगा? हाइट एंड टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हो, वो ये है कि जो आपके स्टेयर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इवन हो। सही है? इवन इन द सेंस के जाहिर सी बात है इनएक्यूरेसीज होती है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेयर की जो हर स्टेयर की जो हाइट है वो क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। तो एसेंशियली हाउ आर यू गोइंग टू फिगर आउट द स्टेयर्स और हाउ आर यू गोइंग टू फिगर आउट द हाइट? तो आप इंडिविजुअल स्टेयर्स की हाइट तो मेजर करोगे नहीं। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू मेजर द हाइट ऑफ 3 और 4 डिफरेंट चेयर्स, उनका एवरेज लेके नंबर ऑफ स्टेयर्स से जो है वो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है? तो यू कैन स्टेट दैट एज वेल कि जो आप हाइट निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे, बाय एवरेजिंग द हाइट्स ऑफ सेवरल स्टेयर्स एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स। बट खैर यहाँ पे एवरेज का एक मार्क है तो इतना कोई खास देने की जरूरत नहीं है। B. Write down all the equations he must use to calculate his power from the readings. You may use symbols or words on your equation. Potential energy is equals to what? Is equals to mgh. Power is equals to energy upon time. Anything else? I guess you should add the average formula as well. Average is equals to total. Sorry. टोटल हाइट के लिए, हाँ, नहीं 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 नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। एवरेज नहीं निकालनी ना आपको, एवरेज को यूज करना है टू फाइंड द सम और तो टोटल हाइट। तो टोटल हाइट विल बी इक्वल्स टू सम एवरेज मल्टीप्लाइड बाय n द नंबर ऑफ स्टेयर्स। ठीक है? तो यहाँ पे n को लेबल कर दिया नंबर ऑफ स्टेयर्स। इवन दो कि आपने पोटेंशियल एनर्जी और पावर के जो दो फॉर्मूलाज लिखे हैं उसमें दोनों मार्क्स मिल जाएंगे। ये कौन है? फुरकान। फुरकान है? कौन है ये? फरहान, सॉरी। बेटा जो सोएगा वो खड़ा हो जाएगा, और मेरे 4 पीरियड हैं तो 4 पीरियड के लिए खड़ा रहेगा। सोने की गलती नहीं करना। रजिस्टर कहाँ है? खोलेगा कौन? या घर से किसी को बुलवाएं खुलवाने के लिए? Write down all the equations he must use to calculate his power from the readings. तो mgh and energy upon time is completely fine. सही है? इन दोनों से आपका सॉल्व हो जाएगा, but just for the sake of it you can add this third formula as well. This right here is question number 11. Cyclist starts from rest, he accelerates and then travels at a constant speed. At 12 seconds the cyclist applies brakes and he slows down. Photographs are taken for the cyclist at 4-second intervals. Figure 2.1 shows the results. तो ये cyclist के photographs हैं. Alright. Figure 2.1. Draw a possible position of the front wheel at 16 seconds. 16 seconds पे कहाँ होना चाहिए? तो again we can see कि यहाँ पे distance कितना है? अरे 9 कहाँ से आ गया बेटा? 8 है। सही है? और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 22. So from 8 to 22 the person's traveling 14 meters. All right. अच्छा, यहाँ पे कितना है? 36. Again 14 meters. तो अब next 14 meters बाद आप एक ऑब्जेक्ट बना दें। तो at 50 you're going to draw a cyclist over here. अब पूरा बेसिकली साइक्लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप डब्बा बना के अंदर साइक्लिस्ट लिख सकते हैं, जस्ट टू शो के यार ये साइक्लिस्ट की पोजीशन है। बैठ के वहां पे ड्राइंग करने नहीं बैठ जाना। सही है? अपने अंदर के आर्टिस्ट को जो है ना वो दबा के रखना। अच्छा, ड्रॉ अ पॉसिबल पोजीशन ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइसिकल एट 16 seconds. अब why is the question saying the front wheel? Because every other picture जो पोजीशन हमने मार्क की है वो किस चीज की पोजीशन है? वो फ्रंट व्हील की है। Plot a distance time graph. No. At 12 seconds, the cyclist applies the brakes and slows down. So it's not going to be constant speed. अब वो 14 meters travel नहीं करेगा 4 सेकंड में। हाँ? He's going to travel some amount less. So maybe here. Some amount less. कहीं पे भी,
बट सम अमाउंट लेस, क्योंकि यहाँ पे तो वो कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा था. ओवर हियर अप टिल 12 सेकेंड्स कांस्टेंट स्पीड है. मीन्स अगर कांस्टेंट स्पीड रहती ही वुड हैव ट्रैवल्ड द 14 meters. But the question says, you know, he starts braking. Braking means the amount of distance that he is going to travel will decrease. It's not going to be 14, it could be anything less than 14. आप 12 पे बना दें, आप 10 पे बना दें, आप 8 meters आगे बना दें, वो आपकी मर्जी है. Yes. क्या हुआ? हाँ? ओके. सो ये आपके साइकिलिस्ट की पोजीशन होनी चाहिए. हाँ, अगर कांस्टेंट स्पीड होती तो आप 50 कहते. इफ इट वुड हैव बीन कांस्टेंट स्पीड, बट इट्स नॉट, द साइकिलिस्ट इज ब्रेकिंग, तो इसका मतलब ही इज गोइंग टू बी ट्रैवलिंग लेस देन 14 meters इन दोज 4 seconds. डज दैट मेक सेंस? ये बात क्लियर है सबको? क्या चीज समझ में नहीं आई? वापस बोलो. सो अगेन आप यहां पे देखो, साइकिलिस्ट ने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 14 meters. साइकिलिस्ट ने और 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 14 meters. ठीक है. अच्छा, ये 12 सेकंड वाला मार्क है ऑलरेडी. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट 12 seconds द साइकिलिस्ट अप्लाइज द ब्रेक्स एंड स्लोज डाउन. नाउ इफ द साइकिलिस्ट इज स्लोइंग डाउन, तो क्या वो वही 14 meters ट्रैवल करेगा या 14 से कम? राइट. 14 से कम है, इस वजह से मैंने 36 के बाद 46 पे मार्क लगा दिया कि भाई वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है. आप 8 पे लगा दें, आप 46 पे नहीं, आप 44 पे लगा दें, आप 42 पे लगा दें, बट वो 14 मीटर से कम होना चाहिए. ठीक है. प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 16 seconds. हाउ डू वी फिगर आउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, खाली आपने पॉइंट्स प्लॉट करने, कुछ भी नहीं करना. सो 4 seconds पे इट्स 8. So 4 seconds पे it's going to be 8. 8 seconds पे it's 22. पे 12 पे it's 36. And 16 पे हमने कितना लिया है? 46 लिया है. 46. सही है. Now again it's going to be a very slight curve. Not necessarily has to be like a curve going almost horizontal. ठीक है. तो अब यार यहां पर तो हमें पता है कि it was what? It was a straight line. And again this person starts accelerating means यहां पर आपका कर्व आना चाहिए एंड यहां पर आपके पास कर्व होना चाहिए. अब थिंकिंग के यार आपके पास कर्व जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं बन रहा, यू कैन देन गो बैक, रिड्यूस द डिस्टेंस दैट ही इज ट्रैवल्ड, ताकि आपका कर्व जो है वो एक प्रॉपर्ली बन जाए. सही है. स्पीड कांस्टेंट कहां से लेके कहां तक है? स्पीड कांस्टेंट 4 से लेके 12 सेकंड है. 12 सेकंड के बाद ब्रेक कर रहा है. यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 8. यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 14. मतलब पहले 4 सेकंड्स और बाकी 4 to 8 सेकंड्स को अगर कंपेयर करो तो 0 to 4 सेकंड स्पीड तेज होनी चाहिए. मतलब एज एन स्पीड शुड बी इंक्रीजिंग, तेज नहीं होनी चाहिए, बट इट शुड बी इंक्रीजिंग. हाँ, तो मतलब 0 to 4 seconds कर्व होगा. Why? Because the cyclist is increasing speed. 4 to 8, 8 to 12 should be a straight line. Why? Because 14 meters मतलब constant speed है. And 12 सेकंड के बाद क्वेश्चन हमें बता रहा है कि this guy is braking, तो we are going to show a downward curve. सही है. So this right here should be an upward curve and this right here should be a downward curve. अब जाहिर सी बात है upward curve को तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो तो values are given by the question. But what you can do is कि ठीक है, you see कि भाई यहाँ पे I cannot form a curve, a very good curve. So what am I going to do? I'm going to take a position जहाँ से मैं curve बना सकूँ. So let's say for example maybe here. Now I can draw a good curve. So what I'll do is I'll go up, I'll move the cyclist to that particular position. ये क्या हो गया? So मैंने cyclist को क्या कर दिया? और उसको मैं 44 पे ले गया. तो यू शुड बी एबल टू मेक दीज चेंजेस. ठीक है. अगर आपको लगे कि यार कोई चीज़ ऑफ जा रही है, आई एम नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन एज वेल एज आई वांट,
तो यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस. पौने 2 घंटे होते हैं आपके पास. देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम. फिजिक्स के P2 के अंदर आपके पास बहुत टाइम होता है. सही है, इतना लेंथी नहीं होता P2. टाइम आपके पास है. सो ऑलवेज ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल एज पॉसिबल. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 12 seconds. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? सो डिस्टेंस अपॉन टाइम. 12 seconds में उसने 36 ट्रैवल किया है. So that's going to be equals to 3 meters per second. Yes. अच्छा जी, अगर 3 meters per second लिखेंगे तो do you think you are going to get marks? So yes, your answer should be 3.0. But इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे. Why? The question itself is not using 2SF. तो यहाँ पर अगर आप 3 meters per second लिखेंगे तो likely कि आपको आंसर मिल जाए, आंसर का मार्क मिल जाएगा. But just for the sake of it, remember कि always answer to at least 2SF. याद रखो, एग्जामिनर को मौका नहीं दो कि वो आपके मार्क्स काटे या कुछ भी करे. सही है? Is that clear? बेटा क्लास के एंड में मैं सबके रजिस्टर्स चेक करूंगा. ये सारे क्वेश्चंस मुझे होने चाहिए रजिस्टर्स में. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 says what? Two athletes A and B run a 100-meter race at t is equals to 0. A gun is fired to start the race. Figure 1.1 shows the distance time graph for the two athletes. ठीक है. Describe the motion of athlete A during the first 8 seconds. Now velocity distance time graph जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसके वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ. तो उसकी वीडियोस जाके देखो, उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह सारी चीज़ें सॉल्व हुई हुई हैं. Now we need to describe the motion of A. वापस बोलो. You cannot say whether it's uniform or non-uniform. देखो, again you need to understand distance time graph से acceleration के बारे में no comments. So how do you know that the speed is increasing uniformly or non-uniformly? The speed is increasing uniformly or non-uniformly means acceleration is either constant or not constant. You are describing acceleration here. Uniformly increasing speed matlab acceleration is constant. Non-uniformly increasing speed matlab acceleration is not constant. So you cannot describe what? You cannot describe acceleration. तो आप increasing speed बोलेंगे बस. Uniform, not uniform नहीं छेड़ेंगे. Does that make sense? सही है? वापस बोलो. नहीं. So I hope कि everyone's watched question number 2 की वीडियो. Question number 2 में जिस तरह से मैंने बताया था, आपने exactly उसी तरह से question को solve करना है. So you've got A first. A जो है क्या वो curve कर रहा है? Can we say that A is curving? From where to where? अब क्योंकि क्लियर नहीं है, राइट, क्लियर नहीं है, और आपका आंसर जो है वो कितने मार्क्स का है? इट्स 2 marks. तो हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सही है. व्हाट यू आर गोइंग टू से इज, आपको इनिशियली कर्व नजर आ रहा है बट यू आर नॉट श्योर कि वो कहां तक है, तो आप नहीं टाइम स्टैम्प ना दो. दैट्स कंप्लीटली फाइन. इनिशियली ए मूव्स विद इंक्रीजिंग स्पीड. इनिशियली इंक्रीजिंग स्पीड, वेलोसिटी जो भी डिस्टेंस है तो आप स्पीड बोलोगे, वेलोसिटी नहीं बोलोगे. अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो आप वेलोसिटी पे जाते. बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है. इवन दो के मार्क्स नहीं कटेंगे, बट टू बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप स्पीड बोलोगे, वेलोसिटी नहीं बोलोगे. क्योंकि अगर आप स्पीड की डेफिनेशन पे जाओ तो दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. अगर आप वेलोसिटी की डेफिनेशन पे जाओ तो दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. राइट. तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वीड रादर गो फॉर स्पीड देन वेलोसिटी. इवन दो वेलोसिटी लिखने पर मार्क्स कटेंगे नहीं, बट स्पीड इज मोर अप्रोप्रिएट. डज दैट मेक सेंस? नाउ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एथलीट ए. तो इनिशियली क्या है? इंक्रीजिंग स्पीड. अरे नहीं, टाइम स्टैम्प दो ना.
Initially increasing speed. हाँ, फिर स्पीड कांस्टेंट है कब तक? एक ही क्वेश्चन में 8 तक का है। हाँ, ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकेंड्स। तो पहले इनिशियली इंक्रीजिंग स्पीड एंड देन, अबे इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट स्पीड कहां से आ गया? क्या हो गया भाई? एंड देन कांस्टेंट स्पीड, खत्म। हाँ, टाइम स्टैम्प अगर आप देना चाहें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ सारे। अबे यार छोड़ो, ये मुझे नाउ टाइम स्टैम्प्स अगर आपके पास ग्राफ क्लियर है तो दें। यहाँ पे ग्राफ क्लियर नहीं है। वाई एम आई सेइंग दैट द ग्राफ इज नॉट क्लियर? आई एम सेइंग दैट बिकॉज कर्व यहाँ पे रुक रहा है, कर्व यहाँ पे रुक रहा है, या कर्व यहाँ पे रुक रहा है। कहाँ पे रुक रहा है? यहाँ पे 30 बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे बोलूंगा सबका अलग आंसर होगा। तो इट्स नॉट obvious over here okay where is the curve stopping. If that's not obvious, what do? You don't take time stamp. जी बेटा क्या हुआ बोलो? someone asked something. ये कौन है बराबर में? आमना? हाँ, तो क्या हो गया? अच्छा, या दैट्स इट। हाँ, असल में कुछ बच्चों की एक आदत होती है ना स्टोरियां लिखने की, तो वो उनको भी अकोमोडेट करते हैं कि अच्छा ठीक है आपको स्टोरी लिखनी है, आप स्टोरी लिखें प्लीज, लेकिन हाँ आंसर इतने पे ही मिलेगा। मार्किंग स्कीम्स अपलोडेड है, सही है। पेज वाइज हर एक क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम में अगर आप जाके देखोगे तो पेज वाइज दिया हुआ है कि हर पेज का कौन मार्किंग स्कीम जो है वो दी हुई है, तो आप मार्किंग स्कीम खोल के जो है वो देख सकते हो। ये पेज नंबर कौन सा है? दिस इज 12 राइट। तो चलो जब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा तो आई शो यू द मार्किंग स्कीम एज वेल। स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एथलीट्स एज द विनर passes the 100-meter mark. State the distance between the two athletes as the winner passes the 100-meter mark. तो विनर कौन है भाई? विनर बी है। विनर क्रॉसेज द 100-meter मार्क ओवर हियर। विनर जब 100-meter मार्क कर रहा है तब ए जो है वो कहां पर है? ए यहां पर है, सही है। नॉट नेसेसरीली, नॉट इन दिस क्वेश्चन। देखते हैं टोटल मार्क्स कितने हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि ये लाइन बनाना जरूरी है कि नहीं। बट या इट्स गोइंग टू बी 93। सो हाँ 93 तो उसका डिस्टेंस है, तो यस इट्स गोइंग टू बी 7 मीटर्स। 1 मार्क का है तो आपको वो लाइन शो करना जरूरी नहीं है, कर दें तो फिर भी बेहतर है। क्या हुआ? उधर जाके बैठ जाओ, गर्मी हो रही है बेटा, प्रॉपर गर्मी हो रही है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एथलीट ए between 4 seconds and 15 seconds. How do you calculate speed? Distance upon time. Again, so you need to be careful. You need to be a little careful over here. You need to be careful about what the method that you use. Sometimes the question says, किसकी तैयारी कर रहा है? सोने की तैयारी कर रहा है? Where? Now, sometimes the question's going to say use the graph to figure out the speed of A between 4 and 15 seconds. When the question says use the graph, क्या मतलब होगा? क्या करोगे? You're actually going to mark points on the graph. आप शो करोगे कि यार आपने कहाँ से लेके कहाँ की कौन सी रीडिंग ली है,
and then you are going to use those readings to find the answer. आप सिर्फ distance upon time नहीं करेंगे. But यहाँ पे question does not mention anything. तो आप कुछ भी कर सकते हैं. सही है. So खैर anyhow यहाँ पे तो ग्राफ ही यूज करना पड़ेगा. तो for A it's 20 at 4 seconds. 15 seconds पे गया है. 15 seconds पे it's exactly 100. सही है. So that's going to be how much? It's going to be 100 distance upon time. That's going to be 100 upon 11. तो आपका आंसर 9.0, 9.1 या 9.09 आना चाहिए. अरे हाँ 80 होगा. 80 होगा. 80 होगा. My bad. So this right here is going to be 7.27 या 7.3 होना चाहिए. Should be 7.272727 recurring. तो अगर आप 1 सेकंड. अगर यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए 7.27. कैलकुलेटर्स कहाँ हैं सबके? कैलकुलेटर्स वगैरह वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करोगे? So your 80 upon 11 should be 7.272727 recurring. ठीक है. Now if it's 7.27 recurring और आपने 7.2 आंसर दे दिया, गलत, wrong answer. For who I was saying 7.2 is the correct answer, go back to grade 4, learn how to round off and then come back. तुम लोग क्लास 11 के अंदर हो, सीरियसली मुझे अभी तुम लोगों को राउंड ऑफ करना सिखाना पड़ेगा. हाँ funny. So this right here is going to be 7.27, either that or 7.3 meters per second.